Good morning. So we are doing here chapter 8. Your chapter 8 is quadrilaterals. And in our previous class, we did midpoint theorem and converse we were doing, it was left. So I will do that also. But first of all, we are starting with the first question I have written on the board. This is your exercise 8.2. Your first question is, because for here we have done midpoint theorem and its converse. So all the questions are based on either midpoint theorem or its converse, right? So your question here is, you are given a quadrilateral ABCD. It's a quadrilateral, no any special type of quadrilateral, and you are given the midpoints of all the four sides of the quadrilateral. P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of BC, R is the midpoint of CD, and S is the midpoint of DA. Now they are saying AC is the diagonal. What you have to prove is, in this question, you have to join these midpoints also, and then you have to prove that SR जो आपकी लाइन है, this is parallel to AC, इसके parallel है और इसके half है, right? Your first part is you have to show that SR is parallel to AC and this is half of AC. Parallel AC, half of AC, यहाँ से आपको वैसे ही पता चल रहा है कि आपकी मिड पॉइंट थ्योरम लगने वाली है, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम में आपने किया था that if you have a triangle and join the points of any two sides of the triangle, then the line will be parallel to the third side and it will be half of the third side. This is what we have to prove here. SR is parallel to AC and SR is half of AC. तो बता सकते हैं कि कौन से ट्रायंगल हमें लेनी पड़ेगी so that we can have मिड पॉइंट थ्योरम? ACD. ADC. Yes, we will have to बेटा एक बार ही बोला करें, आप रिपीट ना किया करें अपनी बात को. I listen. You have to take triangle ADC और इस ट्रायंगल में आपके पास क्या है, ये पॉइंट्स आपके ऑलरेडी गिवन है, राइट? मिड पॉइंट्स एंड दिस इज द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल. ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ये थर्ड साइड, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल भी हो जाएगी और हाफ भी हो जाएगी. सो योर फर्स्ट पार्ट विल बी डन. सेकेंड, यू हैव टू शो दैट PQ इज इक्वल टू SR. आपने कहा कि ये इसके इक्वल है, इसकी हाफ है. अगर मैं कह दूं कि ये इसकी हाफ है, तो ये भी इसकी हाफ, ये भी इसकी हाफ, दैट मींस ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, राइट? सो दीज टू विल बी इक्वल. और ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, दैट मींस PQ एंड SR विल आल्सो बी इक्वल एंड Parallel. yes, they will. मैम ऐसे यार पारू चौन स्टार्टिंग रिकॉर्ड आ रहा है. वीडियो मैम आ गई. मैम आप म्यूट हो. मैम आप म्यूट हो. ओके, क्लियर है? ठीक है. यस मैम. Okay, so we are saying first of all we have taken triangle ADC. In this we joined the midpoints. तो ये line आपकी इसके parallel आ गई, इसके half आ गई. Similarly, if we will take this triangle, then these will be the midpoints. So this line will be parallel to AC and it will be half of AC. अब ये दोनों lines इसके parallel हैं, तो एक दूसरे के भी parallel हो गई. Also the two lines are half of this. That means they two are equal to each other, right? तो ये आपने equal prove करना था. Second part done. And in the third part we have to show that this is a parallelogram. ये कैसे करें? Opposite side parallel equal. Yes, one pair of opposite sides is equal and parallel. आपने कह दिया ये equal Yes, भी parallel भी है, तो ये क्या बन गया आपका? Parallelogram बन गया. Parallelogram. So this is what we have written here. पहले मैंने given लिखा है, मुझे जो जो given था, PQ, R and S are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively of a quadrilateral ABCD. Now what we have to prove, I have written all the three parts from the book, right? Okay, अब इसका हम कर रहे हैं proof.
इरेज कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट जिसने लेना है ले लिया होगा। ठीक है, दिस इज टू प्रूव 1 Yes, ma'am. ले लो. 3. ओके, चलिए लेट वी स्टार्ट द प्रूफ। इन सीधा लिख लो, बाय मिड पॉइंट थ्योरम in triangle ADC, we can say that SR is parallel to AC and SR is equal to 1/2 AC. We will have to take this as equation number 1. This is the first part. Now for the second part, again by midpoint theorem, in triangle ABC, we have PQ parallel AC and PQ is equal to 1/2 AC. This is equation number 2 from 1 and 2. What can we say? जल्दी से बताओ। And like PQ is parallel to AC and SR is parallel to AC. PQ parallel to AC. SR is parallel to PQ. So Yes. PQ RS is a parallelogram. PQ is parallel to SR and PQ is equal to SR. SR. PQ S is a Parallelogram. hence proved. ठीक है, so this was the first question. All the questions अब आपके सारे लगभग वैसे ही चलेंगे और ये क्वेश्चन आपका एग्जैक्टली सेम एक और क्वेश्चन में आएगा, उसमें हम सबसे पहले यही प्रूव करेंगे, उसके बाद उसका फर्दर नेक्स्ट पार्ट करेंगे। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा पहले आपकी प्रॉब्लम ले लेते हैं बिफोर आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी हैव 2 ऑफ योर क्वेरीज। सबसे पहले हमारा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी वर डूइंग यस्टरडे, एक्सप्लेन कर रही हूँ। वी हैव ट्राइंगल ABC, गिवन क्या था जल्दी से बता दो, क्या गिवन था? अ ट्राइंगल ABC, तो AP equals to PB. P is midpoint of AB and we have given that this is parallel to BC. एक लाइन आपको पैरेलल गिवन है, what we have to prove? प्रूव क्या करना है? PQ equals to PC. Yes, हमें गिवन है, आपको जो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम होगा उसमें आपको गिवन टू प्रूव अपने आप लिखना होगा। अगर आपको ये कहते हैं स्टेट एंड प्रूव कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, राइट? सो वी आर सेइंग P is the midpoint of this line and we are given a line parallel to the third side of the triangle and we have to prove that Q is the midpoint of AC. हमने कल कंस्ट्रक्शन की थी, what was the construction? Extend PQ to D. Extend PQ और CD parallel AB. यहाँ से हमने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की थी इसके पैरेलल एंड वी सेड बिल्कुल यही हमने मिड पॉइंट थ्योरम में भी किया था एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आल्सो वी आर डूइंग द सेम। उसके बाद क्या किया था? Triangle congruent. ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए थे। इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कैसे किया था कॉन्ग्रुएंट? दो तो वर्टिकल, एक तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ओके, एक तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दूसरा Angle A equals to angle C. एंगल A is equal to angle C. Alternate, sorry, this will be taken 1 2 are done, so let we take as 3 and 4. हाँ जी, उसके बाद क्या था? प्रिंसिपल का पैरेललोग्राम। Then AP is equal to DC. AP is equal to DC. कैसे? DC. कैसे? हाँ जी,
AQ is equal to CQ. AQ is equal to, ये तो हम prove एक क्या इज इक्वल टू सी क्या हूँ? तो प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है Q इज द मिड पॉइंट। वो हमने जब हम वो कर रहे थे ना, मिड पॉइंट थ्योरम जब कर रहे थे तब आपने यूज कर लिया था AQ इज इक्वल टू CQ, बट यहाँ पर ये कन्वर्स है, तो इसमें हम AQ इज इक्वल टू CQ, ये तो हमें प्रूव करना है, सो वी कैन नॉट टेक दिस। हाँ जी हर्ष बोलो। AP is equal to PQ CD. equals to QD. मैम पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा PBCD। हाँ जी, हमने प्रूव, हम यूज करेंगे AP इज इक्वल टू CD, बट AP इज इक्वल टू CD हमारे पास डायरेक्ट नहीं है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू प्रूव दैट AP CD के इक्वल आया कहाँ से, राइट? वी आर गिवन दैट AP इज इक्वल टू PB, ठीक है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, सो AP इज इक्वल टू PB, राइट? उसके बाद आपने कहा कि ये लाइन आपने इसके पैरेलल, ये वाली लाइन कंस्ट्रक्शन में इसके पैरेलल ड्रॉ करी, एंड दिस लाइन वाज गिवन पैरेलल टू दिस, ठीक है, तो ये दोनों साइड्स ये आपस में पैरेलल हो गई, एंड दीज टू ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। नाउ सिंस टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो इट विल बी अ पैरेललोग्राम, and if it is a parallelogram you can say that CD is equal to PB, right? Now what can we say from these two? PB is equal to AP and PB is equal to CD, so we can say that AP is equal to CD. So first of all you will have to take this as the parallelogram. जब हम मिड पॉइंट थ्योरम कर रहे थे तो हमने पहले कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की थी, फिर हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया था। कन्वर्स में पहले पैरेललोग्राम एंड देन कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है? अब आपके पास 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल, एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ठीक है? मैम ये सारी मिड पॉइंट थ्योरम है। ये कन्वर्स है बेटा उसका। कन्वर्स ये कहता है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, एक मिड पॉइंट है, ये लाइन पैरेलल है, तो सामने वाला जो जहां पर ये लाइन जाके टकराएगी, स्ट्राइक करेगी, दैट विल आल्सो बी द मिड पॉइंट। दिस इज मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है? और जो डायरेक्ट मिड पॉइंट थ्योरम होती है उसमें ये दोनों आपको पहले से ही मिड पॉइंट गिवन होते हैं, पैरेलल प्रूव करनी होती है, ठीक है? हाँ जी, उसके आगे ये हमारी हो गई कॉन्ग्रुएंट, बोथ द ट्राइंगल्स, ये दोनों ट्राइंगल्स आपकी कॉन्ग्रुएंट हुई बाय एंगल, एंगल, साइड, ये दोनों आपस में इक्वल आ गई। उसके बाद क्या हुआ? इसलिए AAS से कॉन्ग्रुएंसी हो गई। क्यों करी कॉन्ग्रुएंसी? AQ is equal to CQ, CPCD, या फिर Q is equal to Now we can say that AQ is equal to CQ by CP और यही हमने प्रूव करना था कि AQ CQ के इक्वल है, that means Q is the midpoint of AC, right? ओके मैम। बेटा जो स्टूडेंट्स, those who come late, please इतनी लेट ना आया करें। It is not allowed to enter the class if you late after 5 minutes. Okay, now question, Vaibhav का question. Vaibhav, you said that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it will be a parallelogram. आपको ये बताया हुआ तो भी आपने प्रूव करना होता है, हम फिगर उसी की ड्रॉ करते हैं। अगर आपने प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम होगा तो हम ड्रॉ ही पैरेललोग्राम करेंगे, राइट? So here we are drawing a parallelogram. A, B, C, and this is D. We are given that its diagonals they bisect each other. Bisect means ये इसके equal है और ये इसके equal है. You have to show that this is a parallelogram. ठीक है? इन दोनों triangles की या फिर इन दोनों triangles की congruency prove करो, ठीक है? इसमें हम क्या ले रहे हैं? मैं ये वाले ट्राइंगल ले रही हूँ 1 एंड दिस इज 2। इसमें आपका इस ट्राइंगल की D इज इक्वल टू OB, राइट? इस ट्राइंगल OC इज इक्वल टू OA और तीसरी चीज क्या लूं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल DOC एंड BOA। एंगल 2 लेके 1 इज इक्वल टू 2। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? CS। साइड SAS एस से ये हो गई कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल DOC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कौन सी? DOC, AOB या BOA? BOA। मैम BOA Yes. BOA BOA ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, बट हमने कॉन्ग्रुएंसी
हमें इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। दैट मींस मैं अगर इन दोनों लाइंस को इक्वल और पैरेलल प्रूव कर देती हूँ तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। नाउ इफ द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कैन आई से दैट दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड? हो Yes, जाएगा? ma'am. Yes. So we have CD is equal to AB. आपने वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल कर दिया। अब पैरेलल कैसे करोगे? दो लाइंस पैरेलल कैसे होती हैं? पैरेलल प्रूव वो करने ऑपोजिट होगी तो पैरेलल ही होगी ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कर देंगे। यस Interior angle. यस, जब भी आपने दो लाइंस पैरेलल प्रूव करनी है तो आपके पास तीन कंडीशंस हैं, जो आपको नजर आ जाए आपने वो लगानी है। वन इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल प्रूव कर दो, सेकंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल प्रूव कर दो, थर्ड वन इंटीरियर। yes, prove the sum of co-interior angles to be 180 degree. So here क्योंकि ये इसके इक्वल है तो आपका यहाँ से D यहाँ से B, angle D and angle B, they will be equal. Now we will say because alternate interior angles are equal, so these lines are parallel, right? So AB parallel DC. Now as AB is equal to DC and AB parallel DC, so ABCD is a parallelogram. Parallelogram. ठीक है, चलिए now to the second question of exercise 8.2. Your question is ABCDs are एग्जांपल्स करा दो। examples भेजो, या तो भेजो आप मेरे पास एक बार फोटो क्लिक करके। ओके मैम। मैं भेजता हूँ। अरे, but at present I will have to go with the next question because my phone भी busy है. On the other phone, second Zoom is going on. So मैं आपका कल ही लेती हूँ आपके problems. ठीक है? चलिए, I am starting with the next question now. Your second question is ABCD is a rhombus. PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and D respectively. Show that quadrilateral PQRS is a rectangle. देखिए, ये आपका ना सीधा सीधा सिंपल सा, इतनी बड़ी स्टेटमेंट हो सकता है ना भी आए, आपका सीधा ये प्रूव करना आ सकता है, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज अ रेक्टेंगल. ठीक है, ये चीज आपने याद भी रखनी है कि अगर आप अभी आपने क्या प्रूव किया कि अगर आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, यू आर टेकिंग एनी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एंड यू आर जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, तो वो हमेशा क्या बन रहा है, अभी आपने प्रूव किया दैट इट यू आर गेटिंग ऑलवेज अ पैरेललोग्राम. उसको आपने कैसे प्रूव किया, ये लाइन ली, ये इसके इक्वल पैरेलल, ये इसके इक्वल पैरेलल, सो द टू लाइंस आर इक्वल एंड पैरेलल मींस दिस विल बी अ पैरेललोग्राम, राइट. सो आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लो, उस क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे यू विल ऑलवेज गेट अ पैरेललोग्राम. चाहे वो क्वाड्रिलेटरल आपका स्क्वायर हो, चाहे रोम्बस हो, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, ट्रेपीजियम हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, जब भी आप उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे यू विल गेट अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच विल बी अ पैरेललोग्राम, राइट. अब आपको बाहर वाले क्वाड्रिलेटरल पे एक कंडीशन दे दिया दैट योर क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस. So we are drawing a rhombus. Rhombus means all sides are equal.
and they are saying that if you join the midpoints of this rhombus, you will get a rectangle. They have given the name, so we will have to take the same names here, A, B, C, D, and the midpoints are P, Q, R, and S. ठीक है, so ये आपके midpoints, and we have to show that if we join these midpoints, we will get a rectangle. ठीक है, आपने ये rectangle prove करना है, right? कैसे करोगे? गिवन लिखो। मैम एक तो पहले ईच एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे। यस, क्वाड्रिलेटरल के अगर चारों एंगल्स 90 हो जाते हैं तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। इसका हमने ये सारे एंगल्स 90 90 प्रूव करने हैं। कैसे करोगे? देखो इसमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना। यस, पहले पैरेललोग्राम प्रूव, फिर देन 90 का दिखाना। 90 कैसे करें, वही तो पूछना है ना, फिर मैं अपोजिट साइड में इक्वल है, फिर उसकी तो रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड इक्वल होती है। हाँ वो तो हो गया, बट फिर जरूरी नहीं है ना कि वो रेक्टेंगल होगा, दैट विल बी अ पैरेललोग्राम। चलो जल्दी से सुनो। अगर हम सेंटर में कोई लाइन ड्रॉ करके कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके कर दें, मैम ऑल साइड भी तो इक्वल होती है रोम्बस की और रेक्टेंगल की। हाँ, रोम्बस की रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। रोम्बस नहीं बेटा, पैरेललोग्राम की बात करेंगे हम, क्योंकि हम अंदर वाला पैरेललोग्राम प्रूव कर रहे हैं। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स प्रूव इक्वल होती हैं, बट आपने इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए आपको 90 डिग्री शो करना कंपलसरी है। अगर आपको रेक्टेंगल गिवन होता, पैरेललोग्राम प्रूव करना होता तो आप सीधा कह देते कि रेक्टेंगल है तो पैरेललोग्राम भी है, बट यू कैन नॉट से दैट पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। मैम को इंटीरियर से को इंटीरियर एंगल्स कैसे करोगे, जल्दी बताओ। देखो कॉन्ग्रुएंसी तो प्रूव करनी पड़ेगी। एसआर पैरेलल क्यू पी क्यू, एसआर एसआर पैरेलल पी क्यू, तो फिर जल्दी से बोलो, जल्दी से। इंटीरियर एंगल सम विल बी 180 इन विच एंगल पीएसआर इज टू, रोशनी आप कौन से में बोल रहे हो? एंगल पीएसआर इज इक्वल टू एंगल पीक्यूआर। मैम पहले तो मैम प्रूफ करके मैम अपोजिट एंगल इसके इक्वल दिखाने पड़ेंगे। अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होगा, बट 90 कैसे आएंगे? कोई आप ये कह रहे हो एंगल पीएसआर और एंगल आरक्यूपी को 180 डिग्री को इंटीरियर, फिर वो उससे अपोजिट वाले भी 180 डिग्री। वेट वन बाय वन। आर्यन आप कह रहे हो कि ये दोनों एंगल, वेट हर्ष, यू आर सेइंग आर्यन कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए और इनका सम 180 हो गया को इंटीरियर। ये को इंटीरियर कहां से हो गए? ये दीज आर द ऑपोजिट एंगल्स, को इंटीरियर तो नहीं है। हर्ष आप बोलो जल्दी से। मैम पहले तो मैम ये अपोजिट एंगल इक्वल है, फिर ये मैम पैरेललोग्राम में ऐसा पैरेलल पी क्यू। हाँ जी। और मैम पी और एंगल आर इक्वल है। हाँ जी। एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 को इंटीरियर। अच्छा, और मैम फिर एंगल एस प्लस एंगल पी भी 180। हाँ फिर मैम राइट हैंड साइड इक्वल लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल। तो उससे तो s प्लस p इज इक्वल टू q प्लस r आया, s प्लस p इज इक्वल टू q प्लस r आ गया। इन दोनों का सम इन दोनों के इक्वल है, वो तो है होता ही है पैरेललोग्राम में। रेक्टेंगल तो प्रूव हुए नहीं। देखो जल्दी से सुन लो, टाइम इज रनिंग आउट। इन दिस क्वेश्चन अपोजिट साइड्स भी तो इक्वल होती हैं। किसकी? रोम्बस की? पैरेललोग्राम की तो ऑपोजिट मैम पैरेललोग्राम की बेटे, ऑपोजिट साइड इक्वल होने से वो रेक्टेंगल प्रूव नहीं हुआ। अब जल्दी से सुन लो, टाइम इज रनिंग आउट। ठीक है, आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू जॉइन दीज टू। पहले तो आप इसको फर्स्ट क्वेश्चन की तरह इसको पैरेललोग्राम प्रूव करोगे। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन एज इट इज पहले पूरा प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल प्रूव दैट PQRS is a parallelogram। ठीक है, उसके बाद हम इसको भी ज्वाइन कर रहे हैं BD को भी।
ठीक है। देन वी आर सेइंग अब रोम्बस की जो डायगोनल्स होती हैं दे क्या कंडीशन होती है, जल्दी बताओ। हमने इसको पिछली एक्सरसाइज में प्रूव भी किया है। Bisect at 90 degree. दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये रोम्बस की डायगोनल्स हैं, इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। मैंने एक लिखा है, राइट। अब ये मैं इसको ये वाला छोटा सा ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल बन रही है ना, मैं ये ले रही हूँ। PQRS आपके नेम्स हो चुके। सो लेट मी टेक दीज पॉइंट्स एज x, दिस इज O एंड दिस इज y। ठीक है, अब अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, if SR is parallel to AC, can I say that SX is parallel to OY? यस मैम। ये छोटा सा पार्ट इसके पैरेलल हो गया। अगर ये पूरी लाइन पार्ट भी पैरेलल हो गए, राइट। अब आ जाओ इस साइड पे, जैसे आपने इधर वाली पैरेलल प्रूव की है, ये भी तो इसके पैरेलल है, क्योंकि 9 बजे की भी तो मिड पॉइंट थ्योरम है। वैसे भी आपने इसको अंदर वाले को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, तो आप कहोगे कि SY इज पैरेलल टू XO। ठीक है, इन दोनों से क्या कह सकते हैं? जल्दी जल्दी जल्दी। SXOY पैरेललोग्राम। SXOY इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी कितने का हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, अगर S 90 हो गया और ये आपने पहले पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, तो आप सीधा कह सकते हो, इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज राइट एंगल देन इट विल बी अ रेक्टेंगल। ये आप पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अगर आपने रेक्टेंगल का एक एंगल 90 डिग्री, सॉरी, अगर आपने पैरेललोग्राम लिया है and if you are proving that one of its angle is 90 degree, then all angles will automatically be 90 degree, क्योंकि अगर ये 90 है तो इसके सामने वाला भी 90, और इन दोनों का सम 180 होता है को इंटीरियर एंगल्स। ये 90 है, दोनों का सम 180, तो ये भी कितना हो जाएगा? 90। ये 90 है तो ये भी 90, सारे एंगल्स 90 डिग्री के हो गए। सो इट विल बी अ रेक्टेंगल। बट आपने ये सारा प्रूव नहीं करना, आप सीधा पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूव करो, पैरेललोग्राम के बाद आप ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करो, देन वी कैन से दैट इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज राइट एंगल, सो इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, And first we need to prove the congruency of this ADC triangle.